بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ بغداد کے بازار میں خودکش دھماکے، 30 ہلاک 100 زخمی، IS سلیپر سیلز کی کارروائی۔ امریکہ نئے راستے پر چل پڑا، مسلم بین ختم، WHO اور کلائمیٹ ڈیل میں واپسی کا عمل شروع۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کہا ایران کے بارے میں اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کریں گے، تہران نے کہا پابندیاں ختم کی جائیں۔ انڈیا کو پابندیوں میں نرمی کی امید، کہا ایران اور وینزویلا سے تیل خریدنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ ہار گیا، ٹوٹ گیا، الگ تھلگ پڑ گیا، باقی زندگی خوف میں جیے گا، قاسم سلیمانی کی بیٹی کا ٹویٹ۔ نکولاس مادورو نے کہا وینزویلا نے ٹرمپ کو شکست دی، چائنا نے مائک پومپیو اور سابق امریکی عہدیداروں کے خلاف لگائی پابندیاں۔ امریکہ میں کووڈ موتیں، عالمی جنگ میں امریکی ہلاکتوں سے زیادہ ہو گئیں، بائیڈن نے سرکاری دفتروں میں ماسک لازمی کر دیا۔ مودی اور چیف منسٹرز دوسرے مرحلے میں ویکسین حاصل کریں گے، ملک میں 15,000 نئے کیس۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز معاون ارینا، آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنز پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں 2 خودکش بم دھماکے ہوئے جس میں کم سے کم 30 لوگ ہلاک ہو گئے اور 100 کے قریب زخمی ہوئے۔ لمبے عرصے کے بعد عراق میں اس طرح کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بغداد کے آپریشنز کمانڈ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ طیران سکوائر کے قریب ایک بازار میں یہ دھماکے کیے گئے۔ میڈیا سورسز نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اس حملے کے جواب میں دارالحکومت بغداد کے تمام میڈیکل سیکٹر کو چوکس کر دیا گیا ہے۔ فوج کے ترجمان یحییٰ رسول نے بتایا کہ یہ دھماکے اس وقت کیے گئے جب سیکیورٹی فورسز حملہ آوروں کے قریب پہنچ رہی تھیں۔ نیوز ایجنسی AFP کے ایک نمائندے نے دھماکے کے مقام پر بتایا کہ دھماکہ کپڑوں کے سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ میں ہوا۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر قبضہ کیا تھا، جس کے بعد عراق میں مسلکی تشدد کی ایک لہر چل پڑی تھی۔ اس طرح کا واقعہ اس سے پہلے جون 2019 میں پیش آیا تھا۔ عراقی والنٹی فورسز وقفے سے گرین زون میں مارٹر اور راکٹ حملے کرتی رہی ہیں، جن میں خاص طور پر امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ پچھلے سال اکتوبر میں ایران کی تائید رکھنے والے گروپس کی طرف سے غیر رسمی صلح کے اعلان کے بعد اس طرح کے حملے کم ہو گئے تھے۔
किसी भी ग्रुप ने ताज़ा धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन समझा जाता है कि आईएसआईएस इराक में इस तरह के हमलों के लिए जिम्मेदार है। इराक में 2017 में आईएसआईएस की शिकस्त का ऐलान किया गया था, लेकिन बताया जाता है कि कई स्लीपर सेल्स छुपकर काम कर रहे हैं। आईएस ने 2014 में इराक में दहशतगर्दी की एक ज़बरदस्त मुहिम शुरू की थी और मुल्क के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इराकी फ़ौज ने एक ऑपरेशन के बाद आईएस को फैसला कुन शिकस्त दी थी। बाइडेन की हलफबर्दारी के साथ ही अमेरिका एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। ओहदे के पहले दिन बाइडेन ने कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करते हुए ट्रंप के फैसलों को उलट दिया। हलफबर्दारी के चंद घंटों बाद उन्होंने 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए। उन्होंने पेरिस क्लाइमेट डील में वापस होने का फैसला किया, मुस्लिम बैन बर्खास्त कर दिया और इमिग्रेशन के उसूलों में नरमी की। बाइडेन और कमला हैरिस ने सदर और नायब सदर की हैसियत से चारशंबे को सख्त सिक्योरिटी में हलफ लिया। बाइडेन ने ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है। वो आज बाज़ अहम ऑर्डर्स पर दस्तखत कर रहे हैं जिनसे कोविड-19 बहरान की राह तब्दील करने में मदद मिलेगी। हम माहौलियाती तब्दीली के मसले से उस तरह निपटेंगे जिस तरह अब तक नहीं निपटा गया है। अमेरिका एक मरतबा फिर पेरिस क्लाइमेट डील का फरीक बन रहा है। बाइडेन ने कहा कि इस फैसले पर अमल के लिए 30 दिन लगेंगे। बाइडेन ने WHO में अमेरिका को वापस लाने का भी फैसला किया। बाइडेन ने बाज़ मुस्लिम मुल्कों के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर लगी पाबंदी को बर्खास्त करने के ऑर्डर पर भी दस्तखत किए। ट्रंप ने 2017 में ओहदा संभालने के बाद ईरान और बाज़ दूसरे मुस्लिम मुल्कों के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। इस पाबंदी पर अमेरिका की अदालतों ने बाज़ फैसले दिए थे, जिनके बाद इस हुक्म की शर्तों में तब्दीलियां की गई थीं। बाइडेन ने ओहदा संभालने के बाद 100 डेज मास्किंग का भी चैलेंज दिया। उन्होंने अमेरिका की तमाम सरकारी इमारतों में पहले 100 दिनों के लिए मास्क को लाजमी करने का हुक्म जारी किया। अमेरिका की इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ने मास्क को लाजमी करने के हुक्म की तारीफ की। बाइडेन ने मैक्सिको सरहद पर दीवार तामीर करने के फैसले को ख़त्म करने का भी ऑर्डर जारी किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका फौरी असर के साथ ये तामीर रोकेगा। ट्रंप ने 2016 के इलेक्शंस के दौरान अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान दीवार तामीर करने का वादा किया था और उस पर अमल भी शुरू किया था, जिसका मकसद मैक्सिको से गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के अमेरिका में दाखिले को रोकना था। बाइडेन की व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने चारशंबे की शाम अपनी ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सदर ने मुस्लिम बैन को खत्म कर दिया है। ये पॉलिसी मजहबी नफरत और जुनूनियत से ताल्लुक रखती थी। काउंसिल ऑन अमेरिकन मुस्लिम रिलेशंस ने बाइडेन के इस फैसले पर खुशी का इजहार किया और मुल्क में मुसलमानों और इमिग्रेंट्स के खिलाफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसियों को ख़त्म करने की तरफ इसे पहला कदम करार दिया। तंजीम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निहाद अवध ने एक बयान में कहा कि बाइडेन ने मुसलमानों और अपने इत्तेहादियों से किए गए एक अहम वादे को पूरा किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन गैर मुल्की अमरीकी पार्टनर्स के साथ ईरान के बारे में बातचीत करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने यह बात कही। उन्होंने अपनी ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सदर ने यह बात साफ कर दी है कि वो डिप्लोमेसी में यकीन रखते हैं। अमरीका ईरान न्यूक्लियर मसले और दूसरी तशवीश को दूर करने के लिए बातचीत करेगा। ईरान को न्यूक्लियर डील की शर्तों पर अमल करना होगा। ईरान ने कहा है कि उसके खिलाफ अमेरिका की गैर कानूनी पाबंदियां आलमी निज़ाम के लिए खतरा थीं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने यह बात एक ऐसे वक्त कही जब एक दिन पहले ही अमेरिका के नए सदर जोसेफ बाइडेन ने हलफ लिया है। बाइडेन ने हलफ बर्दारी के बाद अपनी तकरीर में कहा कि वो अमेरिका में अनसिविल वॉर ख़त्म करेंगे और आलमी इत्तेहादियों के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को सुधारेंगे, जो ट्रंप के 4 साल के दौरान काफ़ी मुतासिर हुए थे। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अब ईरान न्यूक्लियर पाबंदियों के हवाले से फैसला करना बाइडेन का काम है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जालिमाना दौर खत्म हो गया है। उन्होंने कासिम सुलेमानी की हलाकत को अमेरिका की सरकारी दहशतगर्दी करार दिया। ईरान के लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी ज़ैनब ने कहा है कि साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनके वालिद की हलाकत का हुक्म इसलिए दिया था ताकि वो अपने आप को एक हीरो की तरह पेश कर सकें, लेकिन वो टूट कर अलग थलग होकर और हार कर ओहदे से जा चुके हैं।
زینب سلیمانی نے ٹویٹر پر یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ قاسم سلیمانی کی ہلاکت ٹرمپ کا پیچھا کرتی رہے گی اور وہ خوف کے سائے میں جئیں گے۔ زینب نے کہا کہ مسٹر ٹرمپ، تم نے میرے والد کا قتل کیا تھا جنہوں نے آئسس اور القاعدہ کے خلاف جنگوں میں کامیابیاں حاصل کیں۔ تم امید کر رہے تھے کہ تم کوئی ہیرو بن جاؤ گے، لیکن اس کے بدلے تمہیں ہار ہوئی ہے۔ تم الگ تھلگ پڑ گئے ہو، تم ٹوٹ چکے ہو۔ تم ہیرو نہیں بلکہ ایک ایسے آدمی ہو جو ڈر اور خوف میں جئیں گے۔ وینزویلا کے صدر نکولاس مدورو نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دی ہے۔ وینزویلا میں حکومت تبدیل کرانے کے لیے ٹرمپ پورا زور لگا رہے تھے۔ مدورو نے ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے کہا کہ آج 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ جا چکا ہے، ہم نے اسے ہرایا ہے، یہ وینزویلا کی کامیابی ہے، وہ اکیلا رہ گیا۔ انڈیا نے امید ظاہر کی ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں ایران اور وینزویلا کے خلاف پابندیاں نرم کی جائیں گی اور انڈیا ان ملکوں کے ساتھ تیل حاصل کر سکے گا۔ ہندوستان نے 2019 میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دباؤ میں ایران کے ساتھ تیل کی خریدی روک دی تھی، جو تیل کا تیسرا بڑا سپلائر تھا۔ وزیر پیٹرولیم دھرمیندر پردھان نے کہا کہ تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو انڈیا کو خوشی ہوگی۔ انہوں نے بلومبرگ ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بعض جیو پولیٹیکل چینجز ہو رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ حالات کس رخ جاتے ہیں۔ بائیڈن نے اشارہ دیا ہے کہ وہ ایران نیوکلیئر ڈیل میں واپس آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے خلاف لگی پابندیاں نرم ہو سکتی ہیں۔ ٹرمپ نے 2018 میں ایران نیوکلیئر ڈیل برخاست کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ امریکہ میں حکومت کی تبدیلی کے بعد مارکیٹس میں اچھا اثر دیکھا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے شیئر مارکیٹس میں اچھال آیا۔ دنیا بھر سے میں وقت کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ، خاص طور پر کووڈ-19 کی صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز ماون ارینا، آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز ماون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراز۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ بغداد کے بازار میں خودکش دھماکے، 30 ہلاک، 100 زخمی، IS سلیپر سیلز کی کارروائی۔ امریکہ نئے راستے پر چل پڑا، مسلم بین ختم، WHO اور کلائمیٹ ڈیل میں واپسی کا عمل شروع۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کہا ایران کے بارے میں اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ تہران نے کہا پابندیاں ختم کی جائیں۔ انڈیا کو پابندیوں میں نرمی کی امید، کہا ایران اور وینزویلا سے تیل خریدنا چاہتے ہیں۔
ट्रंप हार गया, टूट गया, अलग थलग पड़ गया, बाकी जिंदगी खौफ में जिएगा, कासिम सुलेमानी की बेटी का ट्वीट। निकोलास मदुरो ने कहा वेनेजुएला ने ट्रंप को शिकस्त दी। चाइना ने माइक पॉम्पियो और साबिक अमरीकी ओहदेदारों के खिलाफ लगाई पाबंदियां। अमरीका में कोविड मौतें आलमी जंग में अमरीकी हलाकतों से ज्यादा हो गईं। बाइडेन ने सरकारी दफ्तरों में मास्क लाजमी कर दिया। मोदी और चीफ मिनिस्टर्स दूसरे मरहले में वैक्सीन हासिल करेंगे। मुल्क में 15,000 नए केस। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। चाइना ने अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे ओहदेदारों के खिलाफ पाबंदियां लगाई हैं। चाइना की वजारत खारजा ने बताया कि मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की जुनूनी कार्रवाइयों के लिए 28 अमरीकी ओहदेदारों के खिलाफ पाबंदियां लगाई जा रही हैं। चाइना की हुकूमत ने ट्रंप के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन और साबिक एडवाइजर स्टीफन बैनन पर भी पाबंदियां लगाई। वजारत खारजा ने कहा कि ये पाबंदियां चाइना और अमरीका के अवाम के मफादात की परवाह न करते हुए चाइना के खिलाफ नफरत और तासुब फैलाने और घटिया सियासी मफादात को आगे बढ़ाने की वजह से लगाई जा रही हैं। इन लोगों के अलावा उनके अरकान खानदान के चाइना, हांगकांग और मकाओ में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है। उनसे ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियां और इदारे ईरान के साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकेंगे। चाइना के इस बयान के बाद जॉन बोल्टन ने तंज़िया तौर पर कहा कि हलफबरदारी के दिन ये बहुत अच्छी खबर आई है। मैं अमरीकी आज़ादी को बचाने के लिए मेरी अनथक कोशिशों की इस बावकार कबूलियत को तस्लीम करता हूँ। ट्रंप दौर में अमरीका और चाइना के दरमियान ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे। इस दौरान बाइडेन की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने चाइना की इस कार्रवाई पर तनकीद की। अमेरिका में कोविड-19 से होने वाली मौतें दूसरी आलमी जंग में अमरीकियों की हलाकतों की तादाद से ज्यादा हो गई हैं। बाइडेन ने, जिन्होंने एक दिन पहले अमरीकी सदर की हैसियत से हलफ लिया है, अमरीकियों को वार्निंग दी है कि सूरत हाल और ख़राब हो सकती है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने बताया कि इस बीमारी से अमरीका में मरने वालों की तादाद 4,06,147 हो गई है। दूसरी आलमी जंग में अमरीका के 4,05,399 सिपाही मारे गए थे। अमरीका दुनिया भर में कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के 9 करोड़ 70 लाख के करीब केसेस पाए गए हैं, जबकि सिर्फ अमरीका में 2 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। बाइडेन ने अपनी हलफबरदारी के मौके पर कोरोना वायरस का जिक्र करते हुए कहा कि हमें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आने वाले मौसम सरमा का मुकाबला करना है। हम वायरस के एक खतरनाक और सख्त मरहले में दाखिल होने वाले हैं। बाइडेन हुकूमत ने पहले 100 दिनों में 100 मिलियन लोगों को वैक्सीन देने का एक मंसूबा बनाया है। इस मकसद से मुकर्रर किए गए ओहदेदार ने बताया कि अमरीका WHO में फिर से शामिल होगा। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से अलग होने का ऐलान किया था और आलमी इदारे की फंडिंग रोक दी थी। हालांकि कोरोना वायरस की संगीन वबा के दौरान उसे मदद की जरूरत थी। डोनाल्ड ट्रंप के कोविड रिस्पांस पर भी काफी तनकीदें की गई। 3 नवंबर के सदारती इलेक्शंस में कोरोना वायरस एक अहम मसला था। यूएई में 3,529 नए कोविड केस पाए गए और 4 मौतें हुई। इस दौरान यूएई में रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन को इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। इसराइल में फाइजर वैक्सीन हासिल करने के बाद 12,000 लोग कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए। इनमें 69 वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने दूसरा टीका भी हासिल कर लिया था। इसराइल की वजारत सेहत ने ये बात बताई। बरतानिया में पाई जाने वाली कोरोना वायरस की शक्ल कम से कम 60 मुल्कों में देखी गई है। WHO ने ये बात बताई। अब बात इंडिया की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रियासती चीफ मिनिस्टर्स दूसरे मरहले में वैक्सीन हासिल करेंगे। ओहदेदारों के हवाले से एक खबर में ये बात कही गई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हाल ही में चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग में कहा था कि 50 साल से ज्यादा उम्र के सियासतदान अगले मरहले में वैक्सीन हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है, जिसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और अलग अलग बीमारियों का शिकार 50 साल से कम उम्र लोगों को टीका दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ मिनिस्टर्स के दरमियान 24 नवंबर को होने वाली एक मीटिंग में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम और तफसीलात पर गौर किया गया था।
कोविड-19 के 15,223 नए मामले सामने आए हैं। वजारत सेहत ने ये बात बताई। पिछले 24 घंटों के दौरान 151 मौतें हुई। ICMR के मुताबिक अब तक इंडिया में 18 करोड़ 93 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे में एक प्लांट में आग लगने का वाकया पेश आया है। आग बुझाने के लिए 10 फायर इंजन्स को बुलाया गया। किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। महाराष्ट्र हुकूमत ने इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन तैयार कर रही जिसका नाम कोविशील्ड है। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े की वजह से पैदावार मुतासर नहीं हुई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अहदेदारों ने बताया कि जिस प्लांट में आग लगी वहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन तैयार नहीं की जा रही थी। कोविशील्ड जहां तैयार की जा रही है वो आग लगने के मकाम से 1 किलोमीटर दूर है। आग लगने के वक्त वहां पर 5 से 6 लोग काम कर रहे थे। इस दौरान सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अदार पूनावाला ने कहा कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। बगदाद के बाजार में खुदकुश धमाके, 30 हलाक 100 जख्मी, IS स्लीपर सेल्स की कार्रवाई। अमेरिका नए रास्ते पर चल पड़ा, मुस्लिम बैन खत्म, WHO और क्लाइमेट डील में वापसी का अमल शुरू। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा ईरान के बारे में इत्तेहादियों के साथ बातचीत करेंगे। तेहरान ने कहा पाबंदियां खत्म की जाएं। इंडिया को पाबंदियों में नरमी की उम्मीद, कहा ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदना चाहते हैं। ट्रंप हार गया, टूट गया, अलग थलग पड़ गया, बाकी जिंदगी खौफ में जिएगा, कासिम सुलेमानी की बेटी का ट्वीट। निकोलास मदुरो ने कहा वेनेजुएला ने ट्रंप को शिकस्त दी। चाइना ने माइक पॉम्पियो और साबिक अमरीकी ओहदेदारों के खिलाफ लगाई पाबंदियां। अमरीका में कोविड मौतें, आलमी जंग में अमरीकी हलाकतों से ज्यादा हो गईं। बाइडेन ने सरकारी दफ्तरों में मास्क लाजमी कर दिया। मोदी और चीफ मिनिस्टर्स दूसरे मरहले में वैक्सीन हासिल करेंगे। मुल्क में 15,000 नए केस। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।